Welcome back, students. So in this video lesson I am going to discuss the product of two vectors, and in this the first is the scalar or the dot product of two vectors. So students, let A and B are two non-zero vectors. Vector A is non-zero and vector B is non-zero. A and B are two non-zero vectors, then their dot product or scalar product means you need to multiply two vectors. It is by two ways. एक बीच में डॉट लगा के मल्टीप्लाई करेंगे और एक क्रॉस लगा के मल्टीप्लाई करेंगे. क्रॉस मींस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के मल्टीप्लाई करेंगे. And whenever there is no symbol between two vectors, then any operation or any arithmetical operation is not defined there. Between two vectors, if there is no symbol, there must be either plus, minus or मल्टीप्लिकेशन मीन्स डॉट और क्रॉस. ये होना जरूरी है वहां पर. ठीक है. सो A dot B is defined as magnitude A magnitude B cos theta. And what is theta? Theta is an angle between vector A and vector B. A और B के बीच में जो एंगल है that is theta here. So A dot B is magnitude A magnitude B cos theta. बट बच्चों इस फॉर्मूले को हम रेयर ही यूज करेंगे जब भी आपको टू वेक्टर्स की मल्टीप्लाई करनी होगी. हाँ, कब यूज करेंगे? जब आपको मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B और एंगल गिवन होगा, तभी इस फॉर्मूले का यूज करेंगे. तो फिर क्या करेंगे? हाउ यू फाइंड मल्टीप्लिकेशन. अगर नॉर्मल टू वेक्टर्स दिए हैं तो उसके लिए हम कुछ ऑब्जर्वेशन सीखते हैं पहले. By using this formula we are getting some observations. तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज A dot B, जो ये आपने डॉट प्रोडक्ट निकाली है, इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट. स्केलर मींस इसका जो आंसर होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा, कांस्टेंट क्वांटिटी होगा. तो A dot B इज अ रियल नंबर. A dot B कोई भी रियल नंबर होगा. ठीक है. A dot B इज अ रियल नंबर. सेकंड थिंग, अब आप देखेंगे एंगल cos. तो cos थीटा जो है ये आपके इस टू स्पेशल केसेस आपको देगा यहां से कि इफ थीटा इज 90 डिग्री. थीटा क्या है? 90 डिग्री है. मींस इसका मतलब क्या हुआ? It implies A vector perpendicular to B vector. A and B are perpendicular to each other, and we know that cos 90 is 0. So यहां से एक ऑब्जर्वेशन होगी बच्चों आपके पास कि A dot B is 0 implies मतलब इसका मतलब होता है if and only if. If and only if means if this condition holds then this will hold, and if this holds then it will hold, right? So if A dot B equal to 0 then A and B are perpendicular. मतलब अगर A और B perpendicular है तो A dot B 0 होगा, और A dot B 0 है then A perpendicular to B होगा. लेकिन जरूरी नहीं है आपका A और B में से कोई भी एक वेक्टर 0 हो सकता है, तब भी ये 0 हो जाए. लेकिन मैंने मेंशन किया है A and B are two non-zero vectors first. ध्यान रखना इस बात को. If they are non-zero vector, then if their dot product is 0, then they are perpendicular. ठीक है. इसी के अंदर नंबर 3, if theta is 0 degree, these are the two special cases. If theta is 0, then cos 0 is 1. We know it. तो cos 0 is 1. तो क्या हो जाएगा आपका A dot B? A dot B is simple their product of their magnitude. तो और इसी का एक पर्टिकुलर केस भी है बच्चों. in particular A dot A, if you are to suppose to multiply the same vectors in case of dot, then it will be magnitude A square. So A dot A is A square. So this is the observation. Number 4, if theta is pi, it means ये आपका वेक्टर A है और ये आपका जो AB वेक्टर और AC वेक्टर ये ऐसे हो जाए then theta becomes pi.
तो if theta is pi and we know that cos theta or cos pi is -1, then your A dot B becomes minus product of their magnitudes, so it may be negative. आप याद रखेंगे इसे कि ये आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन cos थीटा, एंड cos थीटा इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। तो इसलिए आपकी डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव भी होती है, दैट्स व्हाई मैंने लिखा है a डॉट b इज अ रियल नंबर। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग जिसका आपको यूज करना है टू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई एम गोइंग टू राइट हियर, दैट इज कि i j k आर यूनिट वेक्टर्स which are mutually perpendicular to each other। ये हमने डिस्कस किया था फर्स्ट क्लास में कि जो i j k हैं, this is i j and k, तो they are mutually perpendicular unit vectors, मतलब i का जो मोड होगा that is 1, j का मोड और k का मोड भी 1 होगा, याद रखेंगे आप इसे। सो अब ये क्या बोल रहा हूं, i j k म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, क्योंकि i और j क्या एंगल होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स, राइट। सो अब आपको i की i से मल्टीप्लाई करनी है, तो आप ये ऑब्जर्वेशन यूज कर सकते हैं कि सेम वेक्टर्स की मल्टीप्लाई जस्ट प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स ओनली। सो i डॉट i करेंगे तो आप मैग्नीट्यूड i एंड के बीच में एंगल कितना है, cos 0, तो इट इज 1 1 1, आंसर इज 1। तो आप याद रखेंगे बच्चों कि योर i डॉट i, j डॉट j एंड k डॉट k, सेम वेक्टर्स अगर i j k में है तो उनकी जो प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट, दैट विल बी 1। अब लेकिन अगर a डॉट a था, दैट इज a स्क्वायर, तो i स्क्वायर 1, j स्क्वायर 1, k स्क्वायर 1। बट अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे i की j के साथ, तो I told you कि if angle is 90 degree, their dot product is 0, तो i और j में कितना एंगल है, 90 डिग्री है। आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, मैग्नीट्यूड i मैग्नीट्यूड j cos 90, so here it is 1 1 0। so from this we can get a conclusion, i dot j dot k and k dot i, that is equals to 0। I dot j dot k dot I equal to 0, and this is the observation. This is observation number 5, which we are going to use in our product। जब हम वेक्टर्स की प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यही ऑब्जर्वेशन आप यूज करने वाले हैं, किसमें, डॉट प्रोडक्ट में, जो हम डॉट प्रोडक्ट करके दिखाएंगे। मैं दिखाता हूं करके। एक वेक्टर है आपके पास, मान लो a i plus 2j minus 3k, b 3i minus 2j minus 5k, एंड हमें फाइंड करना है बच्चों a डॉट b। तो जब a डॉट b फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, अब ये फॉर्मूला तो यहाँ पर यूज करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास थीटा नहीं है। भले ही हम मैग्नीट्यूड a निकाल लेंगे, b निकाल लेंगे, बट थीटा तो नहीं है हमारे पास। दो, हाउ टू सोल्व, आप बस क्या करेंगे बच्चों, i वाले की i से अपने करके दिखा देता हूं, 2j 3k डॉट 3i 2j 5k। तो i वाले की i से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि i की i से मल्टीप्लाई 1 होती है, तो i डॉट 3i दैट इज 3 into 1। बट जैसे आप i की j से करने जाएंगे डॉट प्रोडक्ट, i डॉट j इज 0, so your second is 0, i डॉट k is also 0। j की i से करेंगे 0, j डॉट j it is 1, 4 into 1 फिर 0, then plus 3 into 9 3i 0, फिर 0, बट k की k से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 15 into 1, so it is 3 minus 4 plus 15, it is 4। बट आपको ऐसे करके दिखाने की जरूरत नहीं है, जस्ट मेंशन कि वी नो दैट दिस i डॉट i1 j डॉट j1 k डॉट k1 i डॉट j 0 j डॉट k 0 k डॉट i 0, देन जस्ट मल्टीप्लाई डायरेक्टली, जैसे कि मैं करके दिखा रहा हूं आपको, i की i से करेंगे, j की j से करेंगे, k की k से करेंगे, you will get 40। ऐसे करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको ऐसे करने। तो दिस इज द यूज ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, ऐसे ही हमें मल्टीप्लाई करनी है वेक्टर्स के अंदर। नंबर 6 नंबर,
इफ वी वांट टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, हमें ये एंगल फाइंड करना हो तो कैसे सोल्व करेंगे? तो बस इसी फॉर्मूले की हेल्प से cos थीटा निकाल लेंगे आप, इक्वल्स टू a डॉट b मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो इस फॉर्मूले को आप ले लेंगे a डॉट b डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो अब यहां से कुछ एक इंफॉर्मेशन और है बच्चों कि अगर आपको एंगल जो है 0 टू पाई दिया है, ठीक है ना, तो 0 टू 90 एंगल क्या होता है आपका? एक्यूट एंगल, ठीक है। तो एक्यूट एंगल कब होगा? जब आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। 7 नंबर कि जो हम a डॉट b करेंगे और जो b डॉट a करेंगे। अब जैसे हमने वेक्टर में देखा था कि हमने जब वेक्टर ab बनाया और वेक्टर ba बनाया तो ba वाज इक्वल टू माइनस ab, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। बट यहां पर अगर आप a डॉट b और b डॉट a कैलकुलेट करते हैं, दिस इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं आप इसके बारे में। सो a डॉट b इज ऑलवेज इक्वल टू b डॉट a। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज projection of a vector on a line L. So this is a figure. Here L is a line and AB is a vector, and here a vector A represent the vector AB, and we need to find the projection of vector AB on the line L. So projection of vector AB on the line L is given by vector A dot, and if this line L and AC is the vector representing by P vector, और क्योंकि जो लाइन L है it again a form of vector, then P represent the vector AC or along the line L, then vector A dot P divided by magnitude of P, or you can say the projection of a vector A on vector B। ऐसे आता है क्वेश्चन बेसिकली, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन फाइंड करना है मान लो आपको। सो आप क्या करेंगे? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज गिवन बाय ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड बी, और वेक्टर बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड वेक्टर बी इज गिवन बाय वेक्टर ए डॉट, तो जो वेक्टर बी और उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया उसे क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर बी। तो a डॉट यूनिट वेक्टर b is the projection of vector a on vector b, right? So these are the basic terminology. Next let us solve some question of exercise 10.3 which are totally based on dot product. Let us solve some question from exercise 10.3. Here question number 1 is we are having two vectors with magnitude √3 and 2 and their dot product is √6. We need to find the angle between A and B. तो बच्चों सबसे पहले आपने देखा होगा in the introduction I wrote the formula of angle. Angle formula was cos theta equals to A dot B magnitude A magnitude B. This is the formula we will use here. So of course A dot B is √6, magnitude A √3, magnitude B is 2. So if you solve this you will get √2 by 2 which will be 1 by √2. So cos theta is 1 by √2, and तो आपको कोशिश करना है जितना उसकी छोटे वाला एंगल आपको लिखना है। cos थीटा इज 1 by √2। अब cos थीटा पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होता है तो वहां नहीं जाएंगे आपको, ठीक है। ट्राई टू राइट इन 0 to 180, जो 0 to 180 वाली फॉर्म है उसमें आपको लिखने की कोशिश करनी है। तो cos थीटा इज 1 by √2, here थीटा विल बी पाई बाय 4। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2, 1 और 2 में क्या फर्क है? एंगल ही तो फाइंड करना है, लेकिन 1 में आपको सब कुछ दे रखा था, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी यहां नहीं दे रखा, निकाल लेना। तो निकालते हैं ए डॉट बी इज जस्ट मल्टीप्लाई आई विद आई, जे विद जे, के विद के, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। तो आई विद आई, जे विद जे, के विद के, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0। So this is nothing but 10.
तो जैसे आपको ये दिया है, ये 10 दिया है। मैग्नीट्यूड A, in the first class I told you how you calculate magnitude, square of components under the root, 1 plus 4 plus 9, that is root 14. Magnitude B, 9, 4, 1 under the root 14. Now अब क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला लगाना है, cos थीटा is A dot B divided by magnitude A magnitude B. तो 10 divided by root 14 into root 14, it is 10 by 14, it is 5 by 7. So what is theta now? Theta is cos inverse 5 by 7 because we do not have a value of 5 by 7 directly. So it will be cos inverse 5 by 7. I hope दोनों तरह के क्वेश्चन आसान है। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है, इसमें आपको नेसेसरी इंफॉर्मेशन पहले फाइंड करनी है। Moving to question number 3 and 4, both are similar. In these we need to find projection of vector A on vector B. तो दोनों तो एक जैसे हैं, तो क्यों ना फोर्थ कर लिया जाए। तो प्रोजेक्शन क्योंकि इसने बोला है इस वेक्टर का इस पे प्रोजेक्शन निकालना है, तो जिसका निकालना है उसको A मान लेते हैं, जिस पे निकालना है उसको B मान लेते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A on vector B is given by A dot B divided by magnitude B, right? So A dot B, I with I, J with J, K with K, 56 divided by magnitude of B, 49 plus 1 plus 64, right? तो ये हुआ आपका बच्चों 63, it is 16 and then it is 114. So 60 by 114. So this is the projection of vector A on vector B. Similarly आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पर निकालते हैं तो it will be 1 minus 1 divided by 1 plus 1 under the root. It means it is 0. So projection कब 0 होता है बच्चों? जब थीटा आपका 90 डिग्री होगा। Moving to question number 5. We are having three vectors here, so I assume these vectors are A, B and C. We need to prove here these three vectors are mutually perpendicular unit vectors. दो चीजें प्रूव करनी है, mutually perpendicular as well as unit vectors. तो unit vectors जिनका लेंथ, जिनका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो। तो जिनका मैग्नीट्यूड 1 होगा तो सबसे पहले आपको सबका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। So magnitude A, magnitude B, magnitude C. It must be 1 for this question because we need to prove unit vectors. So 1 by 7, जी 2i 4, 3j means square करेंगे 9, 6 square 36 under the root. तो we need to squaring the components. तो component 2, 3, 4, 1 by 7 हमने पहले से बाहर रख लिया है, that is 49, root करेंगे 7 by 7, that is 1, right? Similarly आप b का करेंगे, 1 by 7 को बाहर रखें, 9 plus 36 plus 4 again is 49, 7 by 7 it is 1. Similarly आप इसका करेंगे तो 36 plus 4 plus 9 it is again 7 by 7 1. So this is your first part. They are unit vectors. Now we need to prove they are mutually perpendicular. Mutually means A B पर, B C पर, C A पर perpendicular है. So आप जब भी आपको परपेंडिकुलर प्रूव करना है वेक्टर्स को, उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो और निकालने के बाद उसे 0 शो कर दो। A डॉट B करेंगे आप तो 1 by 7 49 मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की 3 से 6, 3 की 6 से 18 एंड 2 की 6 से 12, आंसर इज 0। 6 plus 12 18 minus 18 0। Similarly students B dot C निकालें, 1 by 49, B dot C 18 minus 12 minus 6, answer is 0। C dot A निकालो, 1 by 49, C और A 12 plus 6 minus 18, answer is 0। Hence A, B and C जो आपको वेक्टर्स दिए थे उनको A, B, C मान लिया, are mutually perpendicular
and unit vectors. So I hope you like this video lesson and introduction part. For more questions or the remaining question of this exercise, please watch next video lesson.